अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, अब लग रहा है ना मैथ्स के बच्चा, एक्चुअली मैथ्स के नहीं है। Okay, KU is very close to my heart. I belong to KU. I studied from Department of Public Administration, where Dr. Sanok Rachel from today. Like my teachers are here, and I'm really glad that I'm representing my brand here at my educational institute. So starting from like we are covering this. सबसे पहले तो मैं मोना का शुक्रिया अदा करूँगी और मैं सारी टीम का शुक्रिया अदा करूँगी मीडिया वर्स का जिन्होंने हासिल कोई अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ बैठे गेस्ट में से दो को मैं बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस की हूँ, हसन दाऊद खोता एंड असद मेमन, एंड आई हैव कवर्ड देयर स्टोरी। आई एम रियली ग्लैड दैट पीपल लाइक दीज एंड स्पेशली असद मेमन ने मुझे इंटरव्यू तब दिया था जब हसल बिल्कुल शुरू हुआ था। तो हसल इज द पॉडकास्ट बेसिकली एंड आई कवर such kind of success stories जो कि आप जैसे young professionals और students को बहुत कुछ सिखाती हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है। मैं ऐसी स्टोरीज कवर करती हूँ और असद मेमन was one of the initial interviews of Hustle and I'm really thankful to Asad for giving me that opportunity. A big round of applause for Asad Meman and So I'll start with Usman. Usman का मुझे वेट कर रहे थे patiently. उस्मान, सबसे पहले आप हसल में अभी तक आए नहीं हैं, तो कब आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं? I think we just discussed next week, inshallah. Sure. उस्मान, tell us सबसे पहले तो congratulations क्लास में सक्सेस के लिए। Thank you. पहले मुझे जानना है और जैसा कि सारे स्टूडेंट्स को जानना है आपका तो ऑफ कैमरा जो चैलेंजेस होते हैं ना उसके बारे में जब तक हम नहीं सुनेंगे हम नहीं सीखेंगे। तो चैलेंज बिफोर अ सक्सेस of this and challenge after the success. I'm sure challenges कभी खत्म नहीं होते तो वो सक्सेस के बाद भी होंगे. But before the success अभी लोग आपको reach out कर रहे हैं. There are bigger platforms, opportunities. पर जब तक वो कैमरा आप पर नहीं था, जब तक लोग नहीं पहचान रहे थे, उस वक्त तक आपके challenges क्या थे? And how you आपने वो challenges किस तरह से overcome किए हैं इस journey? मेरी journey तो बचपन से शुरू हुई थी. I've been drawing and playing music since I was old enough to hold a pencil. I kept developing my work kind of in a vacuum. I never really cared कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं और दुनिया में क्या हो रहा है. My work was my little world. In 2012, I was selected for TED. If you are familiar with the TED Talks platform. This is not to be confused with TEDx. TEDx is when TED licenses their name out to anyone who can hold a license and then they hold a conference. There's only one TED conference that happens every year and that's in Vancouver, which is called Big TED. So वहाँ पे I went and presented my work and gave a performance and that I think went semi-viral, 5, 6, 7 million views in 2012. After that, being exposed to all of the amazing people that attend TED, people like Elon Musk, people like Steven Spielberg, I got to really see that okay, मैं music में जो चीज़ें कर रहा हूँ पाकिस्तान में, animation, which was the dream since I was a child, could be a possibility. क्योंकि Elon Musk the satellites बना के space में भेज रहे थे. I was like, we can do stuff on Earth and make a hand-drawn animated film in Pakistan. But this was in 2014. I did not know how difficult it would be going into it 10 years ago. I started when I was 23. I'm 33 now. The age of behind the scenes struggles, I've been very open about it. Pakistan mein, the biggest thing, the biggest hurdle that anybody faces is financing. आपके प्रोजेक्ट को या जो भी चीज़ को जो आप डेवलप कर रहे हैं, doesn't have to be a film, it can be anything. You need financing to take it forward and there's only so much your family can support you. If your family is supporting what you're doing to begin with, I know I'm in a very fortunate position where मुझे support मिल रहा था. A lot of people aren't lucky and have to fight really, really hard for that, and their struggles are extremely difficult. But I was in a position where I could. So the main struggle was just raising the finances, convincing people that this is possible in Pakistan, which was a 10-year journey, and making this film was one of the most difficult things I've ever done. मैंने music में तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, but sitting every single day and working with a group of people
convincing them that nobody has ever done this before, yes, but it is possible in Pakistan was the toughest challenge. And also just managing my routine. I didn't have a routine. We were working with an international team. We were working with the team in Pakistan. So it was very, very difficult. And now with the film finished and out there, hopefully a few of you have seen it, inshallah, and I hope you like it. We're dealing with another set of challenges, which is we're a small independent studio. How do we release it internationally? There's so many parties and people interested in the film. How do we get the best deal? Yes, we've signed with a sales agent in Paris, but the struggle is just, it never ends. So I guess the last thing I'll end with is please be careful what you wish for. Thank you. Finances of the challenge, right? So उसको कैसे overcome किया? Because I'm sure यहाँ पे भी बहुत लोग होंगे जिनकी entrepreneurial journey शुरू होने वाली होगी. तो finance raise करने के लिए या funds raise करने के लिए क्या tips आप देंगे उनको? I think the most important thing, what I tried to do while raising finances for this, is that I had to have a very set vision for what I wanted to achieve. I drew the storyboards for the film. I knew exactly what kind of film I wanted to make. Technicalities मुझे समझ में आती थी. And again, like I said, this doesn't have to be you don't have to be a filmmaker to understand this. आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, if you're an app developer, if you're a software engineer, as long as you have a technical understanding, I think that helps in the beginning stages because you can explain and chart out exactly what you want to do and then build your milestones for it. So for me, raising the finances according to explaining the technicalities to people who don't have any understanding for what I'm trying to achieve was important. And the main thing was a lot of people in California funded this film, but they were Pakistanis. और वो सब इंतज़ार कर रहे थे कि Disney eventually आके fund करेंगे, Netflix eventually आके fund करेंगे. I told them ऐसा कभी भी नहीं होगा. We're a first-time film in Pakistan. Nobody's going to take this seriously, and if we don't believe in it ourselves, why would anybody else come and finance this? So that was the main thing I told everyone कि खुद में conviction होनी चाहिए. आगे बढ़ें और अब film खत्म हो गई है. So thankfully it worked because I don't know what I would have done if it didn't. But also what about mentorship? Because a lot of times जब आप एक different field में होते हैं, या different industry है, generally तो हमें जो बहुत ही popular industries है उसमें तो mentors मिल जाते हैं. लेकिन was that a difficult thing for you to find a mentor in your field? I will be very honest, I didn't have a mentor in my field. I had a lot of mentors, thankfully, especially going to the TED conferences. I had people guiding me on my journey from different fields, but nobody in my field. The people who I look up to are old, grizzled Japanese animation men जो किसी से भी नहीं बात करते. They were lucky to get 5-10 minutes with them. So I had to rely on my own understanding and conviction. And I think that helped me in the long run. In the beginning, I really wanted a mentor, but then I found my own strength. ठीक है, big round of applause for Usman. Thank you very much. Thank you. और अगर बहुत ज़्यादा सीखना है तो अगले हफ्ते हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उस्मान का, वो ज़रूर देखिएगा. So moving to Bilal. Hi Bilal, how are you? I think Bilal को mic दे दिया जाए. So Bilal, welcome to Mediaverse. How are you feeling right now? I a bit overwhelmed. Bilal, आपने हासिल को पॉडकास्ट देने से क्यों मना किया? मैं क्या? हाँ, भूल गए. याद So at the time I was reaching out to Asad Bin and my team reached out to Bilal also, but never mind Bilal, अब आप करेंगे मेरे साथ पॉडकास्ट. मेरी पिच मजे की नहीं थी. Work on your pitch. अब एक साल बाद मेरी पिच ड्रॉप हो गई है. एक चीज होती है, मैं एक्चुअली चीज बताऊं सबके लिए, ये सबके लिए. चैट जीपीटी से मत लिखना. मैं 2 मिनट में बता देता हूँ. आज तक इस बंदे ने शायद मेहनत नहीं करी. ही सेट टू सेव. टीम को पकड़ना पड़ेगा इस बात के लिए. बट अब आप करेंगे अब. हाँ, why not? Okay. So Bilal, because I am also a young content creator and I am going through that journey. तो मेरी मोना से बात हुई थी regarding content creation and business. इस पे जब हम questions करते हैं तो मोना said my students are very smart माहम. तो आपको अगर tough questions भी करने हैं तो आप कर सकती हैं. So I won't go into the basics. Of course, content creation क्या है सबको पता है. But contentpreneurship, making it a business, generating revenue, and like the revenue streams
while creating content, उस पे मैं बात करना चाहूँगी. मुझे बताइएगा कि the moment you started, उसके कितने time के बाद you were able to like make it sustainable? So basically, by profession and education, I am a doctor, and I resigned from my job, my day job, last year in November. Oh. And it was a process. Agar if anyone knows over here who has a doctor sibling or someone in their family, you will know that Pakistan mein doctors are like, they are worshipped. Like in the sense that आपको बहुत respect मिलती है, doctor साहब, and like everyone will talk to you very nicely. मगर doctor को पैसे किसी को नहीं देने. And doctor is also considered like as free commodity. कि and मुझे हमेशा जो एक भाषण दिया जाता था, अरे यार ये humanity है, you know you're serving this, but doctor को भी अपना घर चलाना है, doctor has bills to pay also. And it was very unfortunate कि like I studied 10 years for this. I was very good at it. But I was doing content side by side कर रहा था, and content से एकदम से, because the more followers that you have, that's how it translates. You're also like a billboard, and people will be willing to pay you money for that. So मैंने अपनी spreadsheet निकाली थी, like last year in October-ish, and I looked at it, and I was like, medicine, not medicine. And the revenue that was coming from जितने मैं एक साल में as a doctor बना रहा था, वो मैं not medicine 2 हफ्ते में बना रहा था. And I mean, it's not happy, it's not something great. It's a sad thing, it's a sad state. And I was like, what am I doing in my life? What is this? What is happening? And मैंने कहा मैंने तो इसमें बहुत मेहनत करी थी, बहुत दिमाग लगाता हूँ मैं इसमें. And you know the difficult part was when you have to have that conversation with your parents. Because for my mom, उनके लिए जो सबसे बड़ी जो pride की बात है, जो सबसे बड़ी something which she tells everyone, और बड़े वो फख्र से बताती है कि मेरे तीनों बच्चे डॉक्टर हैं, तीनों बच्चे मेरे डॉक्टर हैं. She said, and she says it all the time. I'm like, just stop it, it's fine. It's like नहीं, मेरे तीनों बच्चे डॉक्टर हैं. And this was, so then one day I had to have a conversation with my parents. I was like, you know what? I'm a doctor in Pakistan. I'm not a doctor in the UK or US where, okay, fine, you have a chance to make good money. And उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था. They were like, तो पागल हो गए हो, बिलाल, you have lost it. ये कुछ इसकी exorcism की ज़रूरत है, सदका दो, बकरा कटवाओ किसी तरह से, कि ये किसी तरह से ये डॉक्टर रहे हैं. So one day, because the money was good, I was making good money and everything, so I was like, I need to get my parents. By what time you were making good money? 100K? 100K? Followers? 100K followers, I mean. I thought it was 100K messenger. No, I mean 100K followers touch करते ही वो making like. I'd say once you cross the 50K barrier, that's when it starts coming in, and that's where you're like, wait, this doesn't make sense. Some of these people pay much more than my salary just for 1K, 3K. And so one day, you know, I was like, it was serious. It was getting serious. I was like, अब तो मैं time ज़ाया कर रहा हूँ इधर, and I need to have this conversation with my parents. So I took them out for dinner, and it was a really nice place. And I wanted to show them I can spend money. I have money. And you know, like आपको थोड़ा अपने अम्मा पापा को दिखाना होता है, you know. And because my parents were like, yes, he हवाई बोल रहा है, I don't think he really has money. Like, and then I took them out. I was like, whatever you want to order, correct. सब, everything, whatever. वो भी समझेगी, सटी आ गया. Confirm ये हो गया. So they ordered a lot. डर के मेन्यू देखते थे. I don't know if he has money, but okay, कर लेते हैं. And I don't know why. It's just like, you know, like how things No, I happen. understand. I mean, this is so I used to think this is a challenge for girls only, but I think for everybody here because ये acceptance इतनी नहीं होती. You know, YouTubing, content creation, उसकी acceptance अभी families में भी या हमारे parents की तरफ. Absolutely not. And we have roles. So, and I'm the eldest son. So, like, they were like, you cannot screw up. The number 2 and 3rd are looking at you. So I took them out for dinner and everything. काफी कुछ आया. Bill देने का time जब आया, someone just gave me the bill and everything. और bill के अंदर एक note लिखा हुआ था. It's like, love your work, Mr. Paki. The bill is on us today. And I saw.
don't know who it was. I just saw the person walk out and उसने just gave me a thumbs up and उसने ऐसे हाथ हिलाया and I was like yes, this happened in front of my parents. And my parents looked at one another like कुछ कर ही रहा होगा. Something's up with Belief it. बढ़ गया? हाँ. मतलब acceptance बढ़ गई? I mean, they kind of were like, maybe he really is doing something. Like, we don't understand what he's doing, but maybe he is doing something. Now they're happy? Huh? Now they're like happy? I, The process? oh yeah, like I make my mom a part of the process also. So like that's one thing I learned to do. So you अपनी fees बढ़ा दूँ. So like it takes a while, and I'm not going to say if acceptance comes overnight. You have to work on it. Yeah. That's what I will say. Beautiful, and I think this is something that everybody can learn from because जब हम अपने parents को convince करने जाते हैं तो वो फौरन नहीं होता है. It does take time and it requires a lot of resilience. So coming back to that, the strategy thing, because Instagram is the main thing, and I was talking about. So you said कि 50,000 followers is something where the It's a barrier. Where come must come, yeah. ठीक है. So but again. थोड़ी सी टिप्स हमें आप प्लेटफॉर्म पे भी दें क्विक बिकॉज आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू एंड अब्दुल एंड असद ये जो प्लेटफॉर्म टिप्स हैं बिकॉज एनीबडी हु स्टार्टिंग देयर ओन इंस्टाग्राम जर्नी और यूट्यूब जर्नी और कंटेंट क्रिएशन जर्नी अगर हम कहें तो लाइक आर देयर एनी टिप्स रिगार्डिंग कि इस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए या इतना फ्रीक्वेंटली पोस्ट करना चाहिए या कंटेंट अब लॉन्ग फॉर्म नहीं चल रहा शॉर्ट फॉर्म चल रहा है यू नो what is your learning I think my advice to anyone starting out and my advice is be yourself. अपनी आवाज़ ढूंढो. And एक जो चीज़ जो बहुत frustrating होती है मेरे लिए as a content creator is when I'm looking at my feed and I look at 10 people who do the same thing because it's worked for one person and they're like you know what यही हम करेंगे and everything. अगर इरफान भाई की food series चल गई we will all copy exactly the style he talks in. It's not, I mean, Irfan is a brilliant creator और उसका बहुत खूबसूरत काम है but you need to find your own voice. अपनी आवाज़ ढूंढो. And it'll take a while and everything, but the thing is, when you're asking about why brands will approach you, the brands will approach you why you are different. They won't approach you because you're similar to everyone else. Because someone wants to pay you money, and if they're going to pay you money, they want you to do it in your own voice, अपनी आवाज़ में, अपने style में. वो they don't want to. अगर उनको hire करना होगा, they'll hire the original person जिसका template है. Amazing, Bilal. Thank you so much for teaching us this much. Big round of applause for Bilal, guys. I will move towards Amdul. Amdul, you have mic, right? Yeah. Hi, Amdul. How are you? Hello, I'm good. How are you? Sounds like the same energy, guys. Yeah. Okay, Amdul, how are you feeling right now? Very good. I think, Mashallah, I think the introductions were so heartwarming. इतने sweet और इतने अच्छे. Mona is a wonderful. Yeah, Mona did a great job. I think she made each one of us feel so special and loved. And of course the audience also. I think सबको इतना अच्छा आपने फील कराया है. Thank you so much. क्योंकि बहुत दफा ये होता है कि जो इनवाइट करते हैं आपको वो तो आपको जानते होते हैं पर ऑडियंस कहते हैं ये कौन आ गया भाई कौन है ये. तो मैं भी डर रही थी. मैंने कहा पता नहीं किसी को पता है नहीं पता मेरा जानते नहीं जानते बट आई फील लाइक मे भी शायद जानते हो थोड़ा बहुत. But thank you for such a warm welcome. It made us feel really, really warm from inside. Thank you. And Abdul, you started impromptu comedy, by the way, with Yeah. Faiza. Yeah. I don't know how many of these people have watched it, but I'm loving that impromptu comedy. So I hope you continue doing that, and people should see that face of Abdul as well. Yes, it's been a long journey actually. मैंने improv comedy शुरू किया था कुछ 2010 में actually when I was in university, when I was in LUM, and I used to suck at it. ठीक है, like and it's so funny to say it today because mashallah I enjoyed so much today. अब इतने साल हो गए and I can say that I think I'm a decent improv artist. Khawatoon, yes. और उसके अलावा भी I keep doing it outside my group also, but it was a long journey. Like I used to be so bad at it. मैं इतनी awkward, इतनी shy होती थी और मेरे काफी दोस्तों ने भी जब वो मेरे shows पे आए, they were like तुम छोड़ दो comedy, तुम नहीं कर सकती, तुम acting ही करो क्योंकि पहले मैंने theatre शुरू किया acting से, उसके बाद I came into comedy and then I came into digital content creation. तो acting तो मैं बहुत सालों से करती थी, theatre, short films. तो मेरे फ्रेंड्स वर लाइक तुम एक्टिंग में ठीक हो स्क्रिप्ट तुम्हें मिल जाती है तुम डायलॉग याद करके डिलीवर कर लेती हो
बट ये जो इम्प्रोव कॉमेडी है ना, इम्प्रोव कॉमेडी क्या होती है फॉर द पीपल हु डोंट नो, यू हैव टू कम अप विद एवरीथिंग ऑन द स्पॉट। मतलब आपको सीन दे दिया जाएगा, अब आपको पूरी स्टोरी लाइन उसी वक्त ऑन द स्पॉट सोचनी है, मैं क्या कैरेक्टर हूँ, कि मैं एक मैकेनिक हूँ इस सीन में, या किसी की माँ हूँ, या किसी की बेटी हूँ, या मैं एक दूध वाला हूँ, लाइक एनीथिंग, राइट? इट कैन बी अ रैंडम सीन। So there's no script, guys. There's no Yeah, script. it's no script. You have to think of an idea, a concept, a storyline, your dialogue, your character, everything on the spot. So वो of course एक skill है जो Today you're आपको so good at it. Like I love that. I mean, if you haven't watched, you must watch Khawatoons. Instagram पे भी आप follow करें. I'm loving बिल्कुल बिल्कुल हमारे लाइव शोज होते हैं, कुछ इम्प्रोव कॉमेडी यूजुअली डन एज अ लाइव शो। सो इंशाल्लाह हमारा शो आने वाला है इन दिस मंथ ओनली। वी ट्राई टू डू वन शो एवरी मंथ एट लीस्ट। सो या प्लीज कम। So Amjad, मैं वही सवाल जो मैंने बिलाल से किया था regarding the revenue streams. And since he said कि एक bracket है 50,000, and I was thinking यार 100K followers is a Actually, bracket this could be, I would like to challenge that, actually I'll contradict that, but I'm sorry Bilal, I'm disagreeing with you. But मेरे लिए 50,000 मेरे लिए नहीं था, क्योंकि I was like I will not let numbers define my value or my worth. And mashallah, I would like to say this today कि I got my first paid project जब पतंगीर का मैंने नाम भी नहीं सोचा हुआ था और पतंगीर का पेज भी नहीं था। अच्छा। वहाँ मैंने एक वीडियो बनाई थी एज अ सैम्पल वीडियो। वी ट्रैवल एंड वी मेड अ वीडियो कि यार हमें ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी है, हमें ट्रैवल प्रोजेक्ट, हमें कंटेंट क्रिएशन करनी है। और एक हमने वीडियो खुद से बनाई थी, नो ब्रांड नथिंग, हम खुद ट्रैवल करने गए थे। एंड यूजिंग दैट वन वीडियो आई विश्ड इट टू अ लॉट ऑफ पीपल। कि यार मेरे पास एक आइडिया, मुझे ये अच्छा उस वक्त हम लोग ने अमेरिका में रोड ट्रिप की थी ना, आई वांट टू डू द सेम थिंग इन पाकिस्तान। लोग डरते हैं पाकिस्तान में निकलने से, ओ खतरा है, रोड ट्रिप नहीं ले सकते, हाईवे गंदे हैं, कहाँ रुकेंगे, कुछ करने को नहीं है पाकिस्तान में। ये अभी भी टूरिज्म बहुत बढ़िया है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 2017 जब लोग इतना नहीं निकल रहे थे, और अगर निकल भी रहे थे तो यार कोई टूर ग्रुप ज्वाइन कर लो, अकेले नहीं करना, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, फैमिली के साथ नहीं जाना, पता ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डरते थे, सिक्योरिटी नहीं है, ऑल ऑफ दैट, राइट? सो यू लाइक यार वी वांट टू टेक अ रोड ट्रिप इन पाकिस्तान। और हमारा आइडिया भी था कि वहाँ के पास एक विंटेज गाड़ी थी, वी लाइक वी वांट टू फिक्स अप दिस कार एंड ड्राइव दिस अक्रॉस पाकिस्तान, तो एक एक्स्ट्रा एडेड चैलेंज भी होता है। तो वो एक आइडिया था, वो हमने पिच किया डिफरेंट। और एक और आइडिया था कि यार वी वांट टू मेक अ सीरीज अबाउट कराची, कि कपल गोइंग अराउंड कराची डूइंग डिफरेंट चैलेंजेस। कि एक एपिसोड था कि 1000 रुपये में आप क्या क्या कर सकते हैं कराची में, फॉर एग्जाम्पल में। एक एपिसोड था कि आई गिव 3 चैलेंजेस टू फहद, ही गिव्स मी 3 चैलेंजेस। इस तरह करके मैं 5 डिफरेंट एपिसोड थे अबाउट कराची। तो ये 2 आइडियाज थे और वो हमने पिच किए लोगों को विदाउट इवन हैविंग अ नेम फॉर पतंगीर, no page, no Instagram page, just pitching it on the basis of that one video we had made in America. क्या ये हमारा skill set है, ये हमारा ideas है, ये हम कर सकते हैं, and माशाल्लाह we locked 2 projects. वो दोनों projects हुए कराची unscripted, हमारी पहली सीरीज थी विद फरलो एंड इट वाज अ पेड प्रोजेक्ट। और सेकंड वाला वो जो हमारी गाड़ी वाली रोड ट्रिप वाला था, उसको खैर 2 साल लगे होने में। लाइक स्टार्टेड पिचिंग इन 2017 बट वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हुआ 2019 में, बट इट हैपेंड। सो एंड आई वाज ऑफ द, मेरा यही था यार कि नंबर्स को मैं नहीं डिफाइन करने दूंगी अपना को, मैं अपने काम को डिफाइन करने दूंगी। क्या मेरे में कितनी कैपेबिलिटीज है, मेरा कितना स्किल है, मेरे पास कितने यूनिक आइडियाज है, मैं कितनी डिफरेंट हूँ, मैं ये दिखाना चाहती हूँ। एंड माशाल्लाह आई नो इट वाज अ टफ जर्नी, सब नहीं कर पाते बट हो गया, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक टू promote when I talk to youngsters कि यार numbers के पीछे मत भागो, don't make it your work, अपने काम पे फोकस करो ज़्यादा, और वही आपको फ्यूचर में और काम और प्रोजेक्ट आके देखो, वही आपको ऑडियंस भी देगा जब आप अपने काम पे फोकस करो। Lovely, lovely. And also, of course, यार बजाएं यार। So also, I want to understand because जो लोग यहाँ पर अपना चैनल या मे बी पेज स्टार्ट करने जा रहे हैं and you say कि आपको पहले प्रोजेक्ट में you were able to finance that, but हर कोई फंड भी जनरेट नहीं कर पाता, हर किसी को प्रोजेक्ट पेड मिलता भी नहीं है, which is okay. But what are the like revenue streams? We understand कि अच्छा brand views होती हैं, पर brand views तब होती है जब आपके पास followers आते हैं, right? तो अगर किसी के पास फॉलोअर्स नहीं है उस स्टेज, जैसे अज्यूम करते हैं 25-30 हज़ार या 40 हज़ार, एंड अभी आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे, आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, तो ब्रांड न्यूज़ इतनी जल्दी नहीं आएंगे। बट व्हाट दैट यंग कंटेंट क्रिएटर कैन डू,
देखिए दो तरीके हैं, एक तो ये कि यू वेट फॉर वर्क टू कम टू यू, ठीक है, और एक है कि यू गो एंड पिच, राइट। तो ये दो तरीके हैं, हमने दोनों तरीके किए। पहले मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि यू नो मेक अ प्रोडक्ट एंड देन यू कैन पिच, राइट। अब जैसे आप दुकान में जाते हैं कपड़े खरीदने, आप पहले पैसे तो नहीं देते और फिर कहते हैं यार फिर मैं खरीदूंगा सर। नो, यू फर्स्ट यू लुक एट क्लोथ्स एंड देन यू पे फॉर इट, राइट। You always want to see the product first. As a customer also, whenever we go to buy something, that's what we do, right? So even with content, you have to show what you're capable of first, right? और जैसे बिलाल ने कहा कि of course being unique, having a unique voice, ये सब जरूरी है कि आप कंटेंट क्रिएट करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसलिए। आजकल ये फैशन में ये चल रहा है भाई, सब लग रहा है सबके 100 पे हो रहे हैं, मैं भी ये शुरू कर लेता हूँ, वो लग रहा है बड़े पैसे इसमें मैं भी कर लेता हूँ। नो, you need to have a very strong why. You know, like I think all of us sitting here, all of us are here because we all had a very strong why when we started. उस्मान ने अपनी जर्नी शेयर की कि उसका strong why क्या था। He was creative, artistic, musical. You know, like मुझे कुछ करना है पाकिस्तान में different. Bilal has a strong why. He want to give voice to the people who cannot talk about certain issues themselves, right? मेरा था travel से शुरू हुआ, comedy. You know, दो तीन मेरे भी different vibes थे। तो ये जरूरी है कि यार मैं बोलना क्या चाहती हूँ, मेरा मकसद क्या है। द बिग वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने वो फिगर आउट कर लिया, ये मेरा वाई है, ये मेरी वॉइस है, मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। देन स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इट। नोबडी विल कम टू यू इफ यू हैव नथिंग टू शो, ना ही ब्रांड और ना ही ऑडियंस। तो पहले तो ये कि स्टार्ट मेकिंग वर्क विदाउट वरीइंग कि ऑडियंस आ रही है नहीं आ रही, ब्रांडेड वर्क आ रहा है नहीं आ रहा। पहले आप अपना एक तरह से कहते हैं कि पोर्टफोलियो तो बनाओ, यू नो, एंड देन सेकेंडली देन यू स्टार्ट पिचिंग। ठीक है, पिचिंग ही मुझे पता है मुश्किल है, सबसे नहीं होती, बट पिचिंग का क्या है कि कहीं पे आपका दोस्त है कहीं नौकरी करता है, उसके काम में बात आती है कि यार आई कैन मेक सम प्रोडक्ट फॉर योर कंपनी, ठीक है। कोई आपको पता है आपको कोई जाने वाला मार्केटिंग मैनेजर है कहीं, उसको बोल दिया। मैंने लिटरली ऐसे ही किया, जो जाने वाले दोस्त थे उनको बोला कि यार कोई तो अपॉर्चुनिटी मुझे बताओ। शुरू में फ्री में भी काम किया, विच आई एम श्योर बिलाल यू कैन ऑल्सो वाउच फॉर इट। शुरू में पार्टनर सिस्टम पे भी काम किया, फ्री में भी काम किया, यू नो, टू शो पीपल क्या है मैं पार्टनरशिप कर रही हूँ, आई एम ओपन टू पार्टनरशिप, मुझे काम मिल रहा है, वो भी दिखाना होता है, राइट। तो शुरू में कोर्स स्लो जर्नी होती है, आप इस तरह पिच करते हैं। कभी कभी कोल्ड कॉलिंग भी की कि ईमेल्स पे ईमेल्स की, 10 ईमेल्स। हाँ, इट्स वेरी टफ, आई नो इट्स इंटिमिडेटिंग, बट डोंट गेट इंटिमिडेटेड। इफ यू बिलीव इन योर वर्क कि यार मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने कुछ यूनिक बनाया, आई बिलीव इन इट। जब तक आप खुद बिलीव नहीं करेंगे, जो उस्मान ने भी कहा कि कोई और क्यों करेगा, राइट। सो हैव बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स it comes through. I believe in that. When you're passionate, when you have faith in yourself, when you believe in yourself, it does come through कहीं ना कहीं, right? सामने वाले को समझ आएगा कि यार कुछ है इसमें, let's try them out, right? तो cold calling भी की, जानने वालों को यहाँ वहाँ सब कुछ किया, वो सब कुछ किया। Then second होता है कि काम आना भी शुरू हो जाता है। अब आपने कहा काम कैसे आएगा? Of course आएगा, जब आप काम डालना शुरू करोगे, when you put it out into the world, लेकिन आप Facebook पे डाल लो, TikTok पे डाल लो, Instagram पे डाल लो, YouTube पे डाल लो। What we need to understand is this is the digital age. Brands are always on a lookout that कौन नया क्रिएटर है, कौन यूनिक है, कौन फ्रेश फेस है, यू नो, कौन आजकल कंटेंट क्रिएटर है। तो आपको लगता है कि ब्रांड पे बैठे हुए जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर हैं वो पूरा दिन इंस्टाग्राम पे होते हैं, ठीक है, वो देख रहे होते हैं। पीपल आर आउट देयर स्काउटिंग पीपल, यार किसका कंटेंट चल रहा है, कौन कंटेंट क्रिएट कर रहा है, दे विल रीच आउट, यू नो। बिलाल एंड आई कैन वाउच फॉर इट, हमें डीएम्स आए हैं, हमने कभी बात नहीं की, कभी मिले नहीं होंगे, बट दे लाइक वी लव योर वर्क, यू कैन सी यू कैन ट्रीटिंग योर वर्क, यू नो, मेक दिस वीडियो फॉर अस, मेक दैट वीडियो फॉर अस। तो वो आना शुरू हो जाता है काम, बट एज लॉन्ग एज यू कीप क्रिएटिंग, यू नो। मेरा लिटरली पता पे ये मोटो है, कीप क्रिएटिंग। काम आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लगे रहो, ये है, यू नो, लाइक believe in your work and keep putting good work out there. Lovely. I just want to add, जैसे जो एक अफसर ने कहा ना, एक पिच करना, इसका कई दफा होता है वेट कर रहे हैं बस कि हमारे पास आएगा काम एंड एवरीथिंग, बट some of like the work that I've enjoyed doing the most is जहाँ मैंने खुद पिच मारी है। हाँ? I actually just sent very random DMs, and I'll tell you one which I thoroughly enjoyed doing. ये एक दफा यूजुअली रात को 2-2:30 बजे जो होते हैं ना, आपको बावले आइडियाज आते हैं, तो मुझे एक बावला आइडिया आया था बहुत। मैंने कहा मुझे डिंग डोंग बिल्ली के साथ एक बनानी है। मैंने कहा डिंग डोंग बिल्ली से पाकिस्तानी आइकॉन, शी इज अ पाकिस्तान, मैंने कहा आई डू एवरीथिंग पाकिस्तान, मैंने कहा व्हाई शी नॉट ऑन माय पेज, ठीक है। मैंने कहा मैं डिंग डोंग बिल्ली, आई वांट टू डू दिस कोलैब, एंड बट ऑब्वियसली दे वुड नॉट कम टू मी, बट आई जस्ट सेंट अ कोल्ड डीएम। मैंने कहा हाय, आई वांट टू कोलैब विद यू। They're like I don't understand, we don't think the vibe matches. मैंने कहा no, it matches.
ठीक है मैं तो एंड आई वाज लाइक कैन यू गेट द डिंग डॉग बिल्ली, मैंने कहा डिंग डॉग बिल्ली को वीडियो में आना है। दे लाइक ये कुछ बावला है बंदा लग रहा है। मैं कहा लेट्स गेट ऑन अ कॉल, मीटिंग करते हैं। एंड आई एक्चुअली सेट अप अ मीटिंग विद पूरा वो कैंडिडेट। मैंने कहा यू नो आइडिया ये है कि आई वांट टू हाईलाइट फनलैंड इज अ हिस्टोरिक कराची अम्यूजमेंट पार्क और हम डिंग डॉग बिल्ली को वहां लेकर आएंगे। दे लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैंने कहा लेट मी डू इट। And then I asked them what's your budget and everything, and somehow we had an agreement. And I kid you not, that is probably the video I've enjoyed doing the most. In fact, Ding Dong Billy को बाहर निकालना पड़ा था, लोग बावले हो गए थे। Ding Dong Billy में लटक के थे, Ding Dong Billy की full audience आ गई थी। Funland actually kicked us out of there. So, but I'm glad I did it because I don't think they would have come to me. I had to pitch it to them. मैंने उनको एक बताना था कि यार, sometimes you know one thing which I tell you is, and which I say to all youngsters is that if an idea doesn't scare you ना, and it doesn't scare you, it's not a great idea. अगर आपको डर लग रहा है ना ऐसे, do it, send that DM right now. You will thank yourself. I agree. I absolutely Guys, a big round of applause for Amjad Bilal. I'm sure आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सीख रहे हैं? Amjad, were you adding something? हाँ नहीं, मैं यही एग्री कर रही थी कि he's absolutely right, because कभी-कभी ब्रांड को भी नहीं पता होता कि what they need or what can add value to their brand. तो जैसे उन्होंने कहा कि हमारी भी जो गाड़ी वाला आइडिया था वो हमने मैकडॉनल्ड्स को पिच किया, बिकॉज जब हम लोग एक ट्रिप ले रहे थे अमेरिका में, तो वी वर लाइक यार मैकडॉनल्ड्स इज एवरीवेयर, एंड वी वर और हम लोग लिटरली रास्ते में बस मैकडॉनल्ड्स ही खा रहे थे हर हाईवे पे। वी वर लाइक दे आर एक्चुअली द परफेक्ट रोड ट्रिप पार्टनर, सो व्हाई नॉट पिच इट बैक इन योर होम कंट्री एंड उनको भी दे वर लाइक ओह यार दैट इज एक्चुअली गुड आइडिया, वी आर एक्चुअली हम काफी हाईवे पे मौजूद हैं एंड लाइक यू नो वी कुड बी अ गुड brand partner for a road trip. We can make an association. तो कभी-कभी आप भी आइडिया उनको पिच कर सकते हैं. You never know, they might agree. अब जैसे मुझे 2 साल लगे, but it happened. But you know, you have to take that chance. और जैसे वो भी जो बातचीत बहुत एक्टिवली रहती है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं डरा रही ना, तो मतलब वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो जाते हो। बीइंग कॉन्टेंट क्रिएटर ये भी होता है कि आप एक चीज़ करते करके ना जल्दी भी बोर हो जाते हो, क्योंकि लाइक कंफर्टेबल हो यार ठीक है चीज़ बन रही है, पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है चल रहे, बट देन यू लाइक यार अपने आप को थोड़ा पुश करते हैं, थोड़ा धक्का देके थोड़ा डराते हैं अपने आप को। सो आई रियली एग्री विद दैट। Yeah, I love it. I think this is something that a lot of people miss. You know, self-motivated होना बहुत लोग मिस करते हैं, और शायद वो जब किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं और you know जैसे उन्होंने कहा कि पैसे आ रहे हैं, तो फिर आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। खुद को धक्का लगाना is very important. And I'll move towards Asad. Hi Asad. Assalamualaikum. Yes, First of all, thank you so much for the wonderful introduction, Maimuna, and I'm so happy to be here. Having an audience is very unusual for me to talk directly to so many people. So thank you so much. I'm very happy to be here. You have spoken at YouTube brand cast, by the way. Yes. So YouTube का एक event था, I think that was the first event that YouTube did in Pakistan. और YouTube ने top 5 content creators of पाकिस्तान को select किया था, इरफान जुनेजो है उसमें, and Asad was one of those. Food Fusion was one of those, and Asad and Saima both were there. And I remember मैं पहली दफ़ा उनको वहीं मिली थी, और मैं साइमा के पास गई और मैंने कहा हाय साइमा, I'm Maha, I run Hustle channel, और she's like मुझे वैसे स्टेज की आदत नहीं है, मैं पहली दफ़ा स्टेज पे जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बाद में बात करिएगा। सर याद कर रही थी मैंने बोलना क्या है। So Asad and Saima are not on screen. So Food Fusion, are you all aware of Food Fusion? Yes. Absolutely. So you must have not seen these both on camera, लेकिन वो रेसिपीज तो सबने ही फॉलो की है और करते हैं और करते रहेंगे। तो मैंने फूड फ्यूजन का जब इंटरव्यू किया था, बहुत सारी बातें मुझे क्लिक की। इनकी पूरी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मैं सवाल करूँगी, आप सीखेंगे। और तो इनकी कहानी भी बड़ी मजे की बात थी। देयर वाज दिस टाइम, पहली बात तो ये बहुत अच्छी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे। साइमा वाज डूइंग सिमिलर कॉर्पोरेट जॉब, हायर सैलरी, हायर पैकेज, एवरीथिंग। और अपने पैशन के लिए इन दोनों ने अपनी जॉब छोड़ी, हाई पेड सैलरीज को छोड़ा अपने कंटेंट क्रिएशन के पैशन के लिए। और ड्यूरिंग दिस जर्नी उन्हें अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ी टू गिव द सैलरीज, बिकॉज दे वर नेवर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर कंटेंट। एंड अगर आप इनकी कहानी सुनेंगे, यू विल बी इंस्पायर्ड कि इन्होंने
हर वो मुश्किल जो आ सकती थी वो आई है इनके रास्ते में और उन्होंने उसको ओवरकम किया है एंड दे आर एक्चुअली द इंस्पिरेशन। और फूड फ्यूजन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनली लोग रिकग्नाइज करते हैं जिन्हें शायद उर्दू नहीं आती, जिन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं पता, बट वो फिर भी रेसिपीज, और इन्होंने रेसिपीज की एडिटिंग इतनी फ्रेंडली रखी हुई है हर बंदे के साथ में कि वो देख कर समझ जाएगा, उसे अगर उर्दू नहीं आती तो उसे परेशानी नहीं होगी। सो असद, योर जर्नी इज इंस्पायरिंग, लोग तालियां आपके लिए बजाते रहेंगे। यहाँ लोग बहुत कुछ आपसे सीख सकते हैं, बट मैं ये चाहूँगी कि आप कुछ टिप्स हमें भी दें रिगार्डिंग जो सवाल मैंने अमतुल से किया और बिलाल से किया, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कॉन्टेंटप्रेन्योरशिप पे और अपनी कंटेंट को बिजनेस की तरह ट्रीट करना। मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि हम शुरू में ब्रांड्स को अप्रोच करते थे और वो रिजेक्ट भी कर देते थे और ब्रांड्स को लाना मुश्किल था, पीपल वर नॉट बिलीविंग इन अस। what was that exact moment when you were able to make it sustainable and how you did it? अच्छा, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो एक बड़े क्लियर विजन से स्टार्ट किया था कि इस चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान में। It was a void which I saw no one filling up. मुझे पता था कि ये चाहिए। So I gave my resignation and I said कि okay चलो, रेजिग्नेशन के बाद हमने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, 10-15 वीडियोस बनाए, अभी लॉन्च नहीं किया था। So during that process we went to so many brands who I knew personally, who knew me as a very seasoned digital media professional, but unfortunately none of them said yes. किसी ने भी ये नहीं बोला कि चलो जी मैं आपका कंटेंट स्पॉन्सर करता हूँ। बड़ा एक डिसहार्टनिंग टाइम था, मगर वो कहते हैं ना कि जैसा कि अब तुमने बताया कि you need to make your product and show people what it is, then they will start believing in it. So we were very close to saying कि यार हम नहीं करते, ये तो अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा। But then we went ahead and we released our first video and then second video. Day 9 को Food Fusion break even पे आ गया। Day 9 of launch. And that was when we decided, अभी 8 साल हो गए Food Fusion को, we decided that we are not going to go and pitch anyone. वो उस वक्त से लेके आज तक 8 साल हो गए, no one, we don't have a marketing department, we don't have a sales department. I work with every client personally, me and Simon, हम directly जो बहुत involved होकर काम करते हैं और जितने की भी brands के साथ हमने काम किया है, each and every brand has come to us, we have not worked with them. So वो एक बहुत बड़ी achievement है मेरे ख्याल से और ये हमेशा इंशाल्लाह हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अभी जो टॉपिक है कंटेंटप्रेन्योरशिप और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर दोनों अलग चीज़ है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर यू प्रॉब्ली हैव अ फॉलोइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, बट इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर you don't need a following, you just need to create good content। मे बी वो कंटेंट एक्सप्लेनर वीडियोस हो, मे बी कोई ब्रांड आता है कि यार मेरी ये मशीन है, इसको जरा इसकी एक हाउ टू वीडियो बना के दे दें, हम अपने प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे। यू मेकिंग कंटेंट, राइट? सो इफ यू लुक एट द अमाउंट ऑफ कैमरा सेल, प्रोफेशनल कैमरा सेल्स इन पाकिस्तान, इट हैज मल्टीफोल्ड, ठीक है? जितना अभी फोन कैमरास, माइक्स, लाइट्स जो सेल हो रही है, बहुत सारी कंपनीज ओपन हो गई, दैट जस्ट टेल्स यू हाउ मच कंटेंट इज बीइंग क्रिएटेड। अब उससे क्या होता है, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो किसी न किसी की मदद कर रहे हो, कोई ना कोई इसको देख रहा है, इट इज मेंट फॉर एन ऑडियंस। मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि इस फूड फ्यूजन की जो फाउंडेशन है वो एक चीज़ पे बेस करती है कि वी आर नॉट वर्किंग फॉर आवर क्लाइंट्स जो हमें पैसे देते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं जो हमें देखते हैं। सो दे कम फर्स्ट। मैं बड़ा ब्लंटली, बड़ा क्लियरली अपनी ब्रांड्स को बोल देता हूँ, इट इज़ माई ऑडियंसेस वे और द हाईवे, ठीक है? देयर इज नो अदर वे, विल डू इट दिस वे, अब बना नहीं करेंगे। उससे क्या होता है इवेंचुअली फूड फ्यूजन, अब ये कोविड के टाइम के बाद तो बहुत ज़्यादा अभी लास्ट ही हो गया था कि
everyone started watching our videos. People were locked down at their home and they had to cook, and ना चाह के भी वो cooking सीख गए और उसको enjoy करने लगे. They really loved cooking. और क्या हुआ? और बड़ी interesting चीज़ हुई. And this happened when we started showing our face in front of the camera. तो जब हम किसी restaurant पे कहीं पे जाते तो बहुत दफा chef निकल के आते हैं. Not the owner, not the person sitting on the counter, but the chef comes out and says, "Assalamu alaikum, आपको बस thank you कहना था. ये मेरी नौकरी आपकी वजह से लगी हुई है." मैं जो है अभी मैं कबाब चीज़ गया हुआ था. कबाब चीज़ फ्राइड चिकन वो ट्राई करना. तो one of the chefs came out and said, "Thank you." हम एक रेस्टोरेंट पे गए हुए थे. ढाबा साइड रेस्टोरेंट था. वहाँ पे बिल्कुल एक नॉर्मल सा बंदा था. इट वाज नॉट अ हाई फाई रेस्टोरेंट बट एक्चुअली सर मैंने आपकी फला रेसिपी ट्राई की है. वो ये मेन्यू पे आप वही तो खा रहे हैं. सो that was very क्या हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा फायदा नहीं हो रहा, पाकिस्तान का फायदा हो रहा है, हमारे पूरे मुल्क का फायदा हो रहा है. एक मतलब रोजी रोटी लगी हुई है लोगों की, लिटरली रोजी रोटी लगी हुई है. एंड पीपल आर एबल टू मेक थिंग्स, सेल थिंग्स. मैंने अपने इंटरव्यू में भी लास्ट आपको बताया था कि कोविड में पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स. अब हाउसवाइफ बैठ के कबाब बना रही, फ्रीज कर रही है, एंड नगेट्स बना रही है, फ्रीज कर रही है, एंड शी इज सेलिंग. पूरा अपना जो मोहल्ला है उसके अंदर सेल कर रही. शी इज नाउ अ नोन ब्रांड इन देयर मोहल्ला. पीपल प्रेफर हर ओवर एनी अदर ब्रांड. तो पता है कि घर का बना हुआ है, पता है कि अच्छी क्वालिटी है. हाउ डिड शी लर्न ऑल दैट? इट इज यू लर्निंग अ स्किल, राइट? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मुझे याद है एक ब्लैकआउट आया था 2012 से लेके 2015 अक्टूबर 2012. ये ब्लैकआउट पीरियड पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गया, बिकॉज दैट वाज द पीरियड व्हेन यूट्यूब वाज बैन. अब यूट्यूब से सिर्फ पैसे नहीं बनते, यूट्यूब से लोग सीखते हैं, चीज़ें सीखते हैं. फूड फ्यूजन की फाउंडेशन जो है वो यूट्यूब के बेस पे, बिकॉज वी लर्न हाउ टू डू ऑल दिस, how to shoot, how to do the lighting, how to style the food from YouTube. Okay. अब हमारा next journey शुरू हो गई है. We have started like एक बड़ा मैं हम लोग अभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रांड आर्किटेक्चर के साथ काम कर रहे हैं. वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. So what we are doing is कि फूड फ्यूजन ने फ्यूजन क्राफ्ट शुरू की, which is a crafts channel, DIY क्राफ्ट चैनल. मुझे लकड़ी के ऊपर काम करने का बड़ा शौक है. मैं वेल्डिंग करता हूँ, मैंने अपना किचन बनाया है. Now that crafts channel has a connection to Fusion Homes, which is our e-commerce brand. That is connected to our manufacturing facility. We are going to be manufacturing goods made in Pakistan, and हम किसी भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन पाकिस्तान नहीं लिखते हैं. हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना अच्छा बनाते ताकि हम लिख सकें प्राउडली मेड इन पाकिस्तान. वी वांट टू एक्सपोर्ट, इकोनॉमी को डेवलप करना है. अब ये सब चीज़ हो कैसे रही है? ये सब चीज़ मैं किसी न किसी के कंटेंट देख के ही सीख रहा हूँ. लकड़ी का काम करना मैंने कंटेंट देख के सीखा है. I didn't go to an engineering school. I'm not a mechanical engineer. मुझे वेल्डिंग जो है मैंने YouTube की वीडियोस देख के वेल्डिंग सीखी है. मैं जूते बनाता हूँ तो YouTube की वीडियोस देख के मैंने जूते बनाना सीखे. मैं लेदर के ऊपर काम करता हूँ तो YouTube की वीडियोस देख के लेदर के ऊपर काम कर रहा हूँ. So this content मुझे सिर्फ the brand, the people creating the content, I think वो तो फायदा होता ही है उनका, मगर जिनको फायदा हम दे रहे हैं वो मेजर नहीं किया जा सकता. इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट है कि मेरे को आप एक खिदमतें खर्च कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है. ठीक है. आई थिंक ये जो द वेरी फाउंडेशन being able to set up a manufacturing facility. I don't know anything about manufacturing. अगर आप 2 साल पहले मुझसे पूछते तो मुझे कुछ नहीं पता था. आज हम पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट्स बनेंगे, पाकिस्तानी बनेंगे और हम दावे से बोल सकेंगे कि ढूंढ के दिखाओ पूरी दुनिया में कि किस क्वालिटी का काम है बनेगा. So that is the level we are able to achieve just with content. Wow, guys, जोरदार तालियां. जब आपकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है,
एंड आपकी नीयत बिल्कुल साफ है और आप बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, बिकॉज अगेन नीयत साफ है पर कब तक है, वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं पर कब तक कर रहे हैं। आई थिंक डे वन से लेकर अब तक आपने अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ा है, एंड दैट्स द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ फूड फ्यूजन। I think a lot of people can learn from you and your journey, and you should be aware more on such channels. Thank you, thank you. Okay, moving to Hassan Dawood. Assalamualaikum, कैसे हैं आप? All good, thank you. So कैसा feel करते हैं? I'm really happy because can I share something? So like जब मैं यूनिवर्सिटी में था, so I run an events agency और मुझे events करने का बहुत शौक था. So I joined student council. जब मैं पाकिस्तान में पढ़ा था तब भी, and then मैं मास्टर्स करने US गया, वहाँ पे भी ना निकल पाए। फेसबुक, आई बीन वर्किंग विद मेटा एज वेल, तो वो भी बताए थे कि दे आर क्रिएटिंग स्पेशल, लिटरली स्पेशल टूल स्पेशली फॉर द साउथ एशियन मार्केट। क्यों हैरासमेंट बढ़ रही है, ठीक है, आपको डीएम्स आ रहे हैं, जल्दी मैसेजेस आ रहे हैं, तो उन्होंने अब ये भी इंट्रोड्यूस किया कि नो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर हटा सकते हैं, आप ये लॉक कर सकते हैं। सो मेनी न्यू टूल्स एंड फीचर्स जो पहले नहीं थे, पर अब वो ये कि सोसाइटी की नीड बन गई है। अब जो है एक फ़ोन का एक्सेस हर किसी के पास आ गया है, इंटरनेट का एक्सेस, आपकी ऐप का एक्सेस सबके पास आ गया, राइट। तो अब हर तरह के लोग आ रहे, मुझे बोला कि लैपटॉप करना है। तो सेकेंडली यू नो आपके ऐप को भी लेनी चाहिए। और फोर्थ बॉडी में ये होती है गवर्नमेंट। अब देखो पहले हमारा डिजिटल IT मीडिया डिपार्टमेंट इतना एक्टिव नहीं था, बट अब साइबर क्राइम पे भी रूल्स और लॉज आ गए। पहले कहाँ था साइबर क्राइम पे, नहीं था, राइट। तो वो यही है कि टाइम लगेगा इस सब। दैट्स माय 2 cents। थैंक यू। देखिए जैसे साफ सी बात है, इंटरनेट पे लोगों को मॉनिटर करना कि कंटेंट क्या बना रहे हैं, दैट इज अ बिट हार्ड बिकॉज आई स्टिल एम ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट कि इंटरनेट शुड बी डेमोक्रेटिक, ठीक है। जैसा एंड वही वाली बात है जो आप देख रहे हैं, दैट इज व्हाट द अवाम इज कंज्यूमिंग। बट एज अ क्रिएटर, लाइक एज एस्पायरिंग क्रिएटर्स ओवर हियर हु एवरीवन इज पुटिंग समथिंग आउट, आई लाइक यू टू थिंक बिफोर यू पुटिंग समथिंग आउट। जैसे with me it's like if I'm ever putting something out on the internet, I feel like एक thought process दिमाग में जाता है 100 दफ़ा कि like I'll give you an example. अगर मैं किसी ख़वातीन की तस्वीर डाल रहा हूँ on the internet, I feel like I have to have 3 layers of consent हमेशा होता है। I ask them बार-बार उनसे पूछता हूँ, Are you okay with this? Are you okay with this? And मैं देखो मैंने कहा like 1.5 लाख की आवाम ये देखेगी, and are you okay with me even tagging you? You have to ask this बार-बार. Because once it's on the internet, then it belongs to the internet. Like the world may forget, the internet will not forget. So आपको बार-बार ये अपने दिमाग में सोचना पड़ता है. Like I'll give you like another example. Like right now, like recently I went to Irvine, I went to Carbonite, Najaf and everything, and I was covering it over there. I feel like मुझे हर चीज़ I had to double think in my head कि what am I putting out? How is the audience going to see this? How is this going to be perceived? And I feel like as a creator, you have to have that responsibility, and this is what I want to say to everyone. Whenever you're putting anything out, remember, जो कुछ तुम डालोगे ना, if any repercussion happens from there, it is on you. It is because of you. It's all you. It is no one else's problem. So that is just what I want to close off. Yes, content is great. Yes, but remember, you also have a responsibility with everything you put out there. Big round of applause for all the panelists. आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, और इससे पहले तो होना है एक्चुअली हम सबको गेम धक्के मार के निकाल रहे हैं। We have to close it, but we have recorded the panel. I'm sure वो आपको अगर आप किसी और को भी बताना चाहिए और दिखाना चाहिए जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये पैनल डिस्कशन देख सकता है। We'll be uploading it on Hassan Dawood. Thank you so much. This is from our side. Over to you, Mona. Thank you so much, guys. It's really an honor. Thank you so much for thought-provoking and insights, because being the students of media, it is very important to hear from the people who are actually leading it. So thank you so much for coming here. Now, I would request our Honorable Dean, Professor Dr. Shaista Tabassum, to please come on stage and present shields and the giveaways to our esteemed panel.